Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum. Welcome to the Inclined Thinkers. I am Sadiq Amar, your chemistry teacher. Students, we are going to discuss the chapter number 7 of chemistry 9th. The name of the chapter is electrochemistry. This is the lecture number 2 of the chapter number 7. The description of the chapter we have already discussed into the previous and in the first lecture. The topic of discussions today is oxidation and reduction. Respected students, we will discuss the oxidation and reduction into the three different contexts. Number 1, oxygen. Number 2, hydrogen. And number 3, electrons. It means we will discuss the oxidation and reduction with respect to the oxygen. Number 2, we will discuss the oxidation and reduction with respect to the hydrogen, and oxidation and reduction with respect to the electrons. These are the three different types and the different contexts that we will discuss in this chapter. First of all, we will see what are the oxidation and the reduction. When we are saying about the introduction of the oxidation and reduction, it means we are saying something regarding the oxidation and the reduction. In this context, we will discuss the oxygen and the hydrogen. Related to the hydrogen and the oxygen, we will say or we will discuss the addition of the oxygen and hydrogen, removal of the oxygen and the hydrogen. It's mean what is the effect if the oxygen is added and what is the effect if the oxygen is removed. Similarly, what is the effect of the addition and the removal of the hydrogen? Focusing the concept or focusing the wording of the slide, that is concept of the oxidation and reduction is based upon the either addition or removal of the oxygen or addition or the removal of the hydrogen in the chemical reaction. The next slide is very important. We will say what is the oxidation. Oxidation is basically the addition of the oxygen or removal of the hydrogen during the chemical reaction is called oxidation. It means we can say or we can emphasize that on the 2 points. Number 1, addition of the oxygen and removal of the hydrogen, that is called oxidation. And when we will say about the reduction, reduction means addition of hydrogen or removal of the oxygen during the chemical reaction, that is called reduction. Similarly, we will say that oxidation and reduction take place or taken place at the simultaneously or at the same or in the same chemical reaction. So we can say that where there is oxidation there is reduction, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन होती है वहां पर रिडक्शन होती है. कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन ये है या तो ऑक्सीजन प्लस हो रही होगी या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन है. सिमिलरली रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, हम कहेंगे ये रिडक्शन है. Now we will see what is the oxidation and reduction with respect to the oxygen. हम ऑक्सीजन के हिसाब से देखेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो क्या होती है. For the concept of the understanding with respect to the oxygen, we will say that oxidation is basically the addition of the oxygen, and in the process of the reduction we will say removal of the oxygen. जब हम ऑक्सीजन के हवाले से बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीजन जो है वो निकल रही है तो हम क्या कहेंगे, ये रिडक्शन है. अब हम इसकी वर्डिंग की तरफ जाते हैं. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द एडिशन एंड द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, अ रिएक्शन बिटवीन द जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन इज अकर्ड, and the result is that carbon dioxide is formed and zinc is formed. अब होगा क्या कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन जो है वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और जिंक सेपरेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है. अब ये देखें, यहाँ पर हम ऑक्सीजन के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे. देखें इधर जिंक था, जिंक में इधर जिंक ऑक्साइड था इस साइड पे, ये देखें जिंक ऑक्साइड इस साइड पे गया है तो ये देखें ये जिंक रह गया. अब इसका मतलब है यहां से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है. जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी तो ये क्या कहलाएगा, ये आपकी कहलाएगी रिडक्शन. इसी तरह इधर कार्बन था, इस साइड पे है तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ. इसका मतलब है कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गई है, और जब कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो क्या कहलाएगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन जो है वो कहते हैं। मैं फिर बताता हूँ, जिंक ऑक्साइड था, इस साइड पे जिंक रह गया जाके, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया है, लिहाजा ये रिडक्शन है। इधर कार्बन था, दूसरी साइड पे गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इस कार्बन में ऑक्सीजन जमा हो गया, लिहाजा ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन होगी। अब हम इसकी दो एग्जांपल्स और देख रहे हैं। ये एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ये वाली एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, इसको बड़े ध्यान से समझना। ये देखें, Fe2O3 था यानी आयरन ऑक्साइड था, इधर गया, ये देखें आयरन ऑक्साइड था, जब इधर गया तो सिर्फ आयरन रह गया, O3 जो था वो यहां से सेपरेट हो गया। जब O3 सेपरेट हुआ तो इसका मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। जब लूज ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये रिडक्शन होगा आपके पास। इधर ये देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड था, CO था, इस साइड पे आ गया तो CO2 हो गया, यानी CO ऑलरेडी था, एक ऑक्सीजन उसके अंदर जो है वो ऐड हो गई है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई है या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। तो ये देखें यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई है, लिहाजा ये ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी एग्जांपल्स को देखते हैं। ये देखें, आयरन है प्लस ऑक्साइड है, ये आप दोनों आपस में मिलके Fe2O3 बना रहे हैं, यानी कि ये वाला, ये कैसे बनता है ये इस रिएक्शन में बताया। ये देखिए आयरन था, आयरन में इधर जाके ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गई है। जब ऑक्सीजन ऐड हुई है इसमें, ये देखें ये सिंपल Fe था, इधर क्या हुआ Fe2O3 बन गया, तो ये क्या हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी हमने जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखनी है कि हाइड्रोजन के हवाले से जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। लेकिन जब हम रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब हम इसकी बात करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि रिडक्शन उस वक्त होगी जब हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीडेशन उस वक्त होगी जब हाइड्रोजन रिमूव होगी। ये देखें हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये H2S था, इस साइड पे गया तो S रह गया, हाइड्रोजन सल्फाइड था, इस साइड पे गया तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया और S रह गया। यहां से हाइड्रोजन चूंकि रिमूव हुई है लिहाजा ये ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ क्लोरीन था, Cl2 था, इस साइड पे गया तो HCl होगा, यानी इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुई है। ये चूंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था लिहाजा ये रिडक्शन होगा। अभी हम इसकी एग्जांपल्स देख रहे हैं। ये देखें, ये वाला रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हुआ कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, और जब भी हाइड्रोजन का लॉस होता है या रिमूव होती है हाइड्रोजन तो वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। ये देखें NH3 था, जब इस साइड पे गया तो आपके पास N2 रह गया, H3 जो था वो जहां से रिमूव हो गया लिहाजा ये ऑक्सीडेशन होगी। जब हम इसकी बात करेंगे Br2 की, ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन इस साइड पे जाके क्या हो गया HBr, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई है। जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इस साइड पे आ जाते हैं, ये देखें CO2 था, CO2 जब इस साइड पे गया तो CO रह गया, यानी यहां से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है। जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तो क्या बनेगा, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा इधर देखें H2 था, हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन में इधर गई है तो ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये देखें, ये मैंने हाइड्रोजन के हिसाब से एग्जांपल दी है और यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के हिसाब से दे दी है। ये दोनों जो है इनको जो है वो बेसिकली हमने जो है वो कंपेयर कर दिया है। यहाँ से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है। मैंने बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन के हिसाब से और ऑक्सीजन के हिसाब से जो था वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंपेयर कर दिया। अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं, कहते हैं सो केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड ओवरऑल दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। हमने पहले चैप्टर में भी ये बात पढ़ी थी कि जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही प्रोसेस में हो रही होती हैं, बल्कि होती ही एक प्रोसेस में, तो उनको जो है वो ओवरऑल हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं जी, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती हैं। डिफरेंट रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ना तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, ना ही गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ना ही लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ना ही गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो फिर होता क्या है कि या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं। जब भी लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है
तो उस कॉन्टेक्स्ट में या उस सूरत हाल में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। वो फिर हम वन बाई वन देखेंगे कि क्या होता है। अभी हम इसकी वर्डिंग की तरफ जाते हैं। देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शंस व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बट देयर आर considered redox reactions or oxidation and reduction reactions. To deal with these reactions, new concept loss or gain of electron is used. Therefore, reactions which involve the loss or gain of electrons are called oxidation and reduction reactions. इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक होगा क्या? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी किसी भी आयन में से या एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होंगे या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी हम इसकी एग्जांपल देखिए। देखिए ये जिंक था, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं और Zn+2 होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूंकि लूज हुए हैं या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, लिहाजा दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आयरन है, आयरन Fe2 था। ये देखें यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो Fe3 हो गया। यहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, लिहाजा ये ऑक्सीडेशन है। जब हम रिडक्शन की बात करेंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होगा? या तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर आयन में गेन होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इस सूरत हाल में भी जो है वो आपकी रिडक्शन होगी। ये देखें 2H+ था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये हाइड्रोजन बन गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन है। इसी तरह क्लोरीन था Cl2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो 2Cl नेगेटिव बन गया, एक्वा सॉल्यूशन बन गया उसका, या एक्वा स्टेट में एग्जिस्ट कर गया। इस सूरत हाल में रिडक्शन करेंगे। जब ये ओवरऑल रिएक्शन होगा जिसको जो है वो हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, तो क्या होगा? ये देखिए Zn है प्लस 2H पॉजिटिव, इस साइड पे गया तो क्या हो गया? Zn पॉजिटिव हो गया और H जो था वो हाइड्रोजन की शेप में एग्जिस्ट कर गया। ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होगा। इसी तरह जब हम इससे आगे चलते हैं अगली टर्मिनोलॉजी में, ये देखें ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड बेसिकली कैसे बनता, हम उस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सोडियम है आपका। सोडियम ने क्या किया? सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Na+1 हुआ। चूंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखें ये ऑक्सीडेशन बन गया। इधर क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बन गए। ये इसने इसकी रिडक्शन हुई। अभी हम वर्डन की तरफ जाते हैं। A reaction between sodium metal and chlorine take place in 3 steps. Sodium ion loses an electron to form the sodium ion such as, ये हमने आप ऑलरेडी अब बता दिया कि सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Na+ बन गया और इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। Similarly or simultaneously this electron is accepted by the chlorine atom. ये हमने जो था वो जब हम 5वां चैप्टर करेंगे तो उसमें जब हम आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ एज क्लोरीन एटम नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हमें पता है कि जो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करती हैं। ऑक्टेट क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने आउटर मोस्ट शेल में, कोई भी एटम जब अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट। एज अ रिजल्ट क्लोरीन एटम चेंजेस टू द क्लोरीन सच एज, ये हमने बात बता दी है। अल्टीमेटली बोथ दीज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। ये दोनों क्लोरीन और सोडियम जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड बनता है। ये देखें इसी की एग्जांपल, ये ओवरऑल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। ये सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सोडियम आयन बन गया। इसी तरह ये क्लोरीन था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्लोराइड आयन बन गया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसकी रिडक्शन हुई है। एज अ रिजल्ट जो है वो NaCl बन गया। इसी तरह कीप इन द माइंड क्लोरीन एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल नॉट एटम्स, सो देयरफॉर द एक्चुअल बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, ये देखिए 2Na+Cl2 क्या होगा? 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा आपके पास। इससे अगली जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो इसमें जो है वो हमारे पास तीन डेफिनेशन बनती हैं दोनों की। ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रिडक्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ये इसकी जो है वो 3 एग्जांपल्स हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो 3 बातों को डिस्कस किया है बेसिकली चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर 2 में, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। नंबर 1, ऑक्सीजन के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।